हेलो हाय। आज हम लोग बेसिक फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे ऑफ द फिजिक्स। द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। जब इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है, मतलब जुड़ते हैं या रिमूव होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं हम। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सेम चार्जेस होते हैं, अगर प्लस प्लस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस है प्लस माइनस तो वो एक दूसरे को लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। एंड अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, एंड द कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज F is equal to CQ A upon D square. Meaning, if there is 2 point masses and they have charges of QA, this is the point A and B, and it has charge QB, and they have a distance of D square, then the force would be F is equal to C is the constant, and QA QB upon D square. D is the distance. Okay, so the formula is written here. Yes, only negative charges can move in solids. सिर्फ नेगेटिव चार्जेस मूव कर सकते हैं सॉलिड्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है आउटर सरफेस पे कंडक्टर्स के। द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज इज ग्रेटर व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉलर। कंसंट्रेशन चार्ज की ज़्यादा होती है जब रेडियस कर्वेचर की कम होती है। ओम्स लॉ V is equal to IR, where V is the voltage, I is the current, and R is the resistance. Okay, so when in the series circuit, if this is a series circuit, then this would look like this: R1 in the series, R2 in the series, R4 and R3 in the series. Then its formula would be Vt. If we calculate voltage, then here voltage would be V1 plus V2 plus V3 plus V4. In the series it would be just add it, and I would be the same through all elements. Current would be same, and R total would be total of all the resistance. And a parallel circuit. In a parallel circuit, this circuit would be look like this: R1, R2, R3, R4, and here V would be same across each circuit element. IT would be I1 plus I2 plus I3 plus I4, and R टोटल होगा, रेजिस्टेंस जो टोटल होगा वो होगा 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4. एंड इलेक्ट्रिक पावर P is equal to IV is equal to I square R. Electric power P is equal to IV, where P is the power, I is the
current, and V is the voltage. I square R, I current, R resistance, and A V. A ampere, V voltage, volt, W watt. Watt is the unit of the power, and work would be written in the QV. And Q is the charge, V is the voltage. So Q measured in the coulombs, charge measured in the coulombs, and V is the volts, J is the joule. And potential, V potential is equal to W upon Q, where W is the work done, so this would be denoted by the joule, and Q is the coulomb, so is equal to volts. And capacitance is equal to Q upon V, सो Q का कोलम्ब होगा एंड V का वोल्ट्स होगा, एंड कैपेसिटेंस को हम लोग फैरड से भी डिनोट करते हैं। फैरड इसकी एक यूनिट है। ओके, एंड लेट्स सी नेक्स्ट। मैग्नेटिज्म। Every magnet has a north pole and a south pole. We know this earlier. If there is a magnet like this, this would be its north pole and this would be its south pole. Like poles repel. अगर सेम पोल है नॉर्थ नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अगर नॉर्थ साउथ हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड हेयर इज द गॉस लॉ, you can see here Gauss law is the F is equal to K m1 m2 upon d square. This is also the same. D is the distance between two points or two particles. M1 m2 is the magnetism of particle 1 and particle 2, and K is the magnetism constant, and F is the force. And electromagnetism. A magnet field is always present around a conductor in which a current is flowing. एक मैग्नेट फील्ड हमेशा प्रेजेंट होती है अराउंड एक कंडक्टर जो कि चालक होता है, इन विच ए करंट इज फ्लोइंग, चालक में करंट फ्लो करता है। एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एंड ट्रांसफॉर्मर लॉ इज हियर, Vp upon Vs is equal to Np upon Ns. Here Vp is voltage of primary voltage, and Vs is the secondary voltage, and Np is the primary rounds primary, and Ns is also secondary rounds. एंड कॉइल्स का है Np। क्लासिकल फिजिक्स में देखते हैं कुछ फार्मूलाज। लीनियर फोर्स का क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। M इज द मास एंड A क्या है, A है त्वरण, ग्रेविटेशनल त्वरण, यानी इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मास का किलोग्राम होता है, और इसको हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं। मोमेंटम इज़ द P, और इसको m इंटू वी लिखते हैं। m इज़ द मास, v इज़ द वेलोसिटी, एंड मास को हम लोग किलोग्राम में डिनोट करते हैं, एंड वेलोसिटी को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में लिखते हैं। मैकेनिकल वर्क और एनर्जी,
मैकेनिकल वर्क और एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, इसको एफ एस से भी डिनोट कर सकते हैं, वेयर एफ इज द फोर्स एंड एस इज द डिस्टेंस जो मेजर की गई है। तो एफ का न्यूटन और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर इज इक्वल टू जूल। सो वर्क का क्या होता है, जूल। एंड काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास स्क्वायर, वी का है, एम का होता है किलोग्राम एंड वी का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो स्क्वायर है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, जिसका बन जाएगा जूल। एंड मैकेनिकल पावर P इज इक्वल टू एफ एस अपॉन टी, वेयर एफ का होगा न्यूटन, एस का मीटर, एफ से विस्थापन एंड टी का होगा सेकेंड। सो इट वुड बी जूल पर सेकेंड। एंड पावर को हम लोग वॉट से भी डिनोट करते हैं। एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी, so it would be MAVA plus MBVA is equal to MAVA dash is equal to MBVA dash, where M is the mass, V is the velocity, and conservation of kinetic energy between A and B with respect to A1 is the m हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर एम ए वी ए स्क्वायर हाफ एम बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ए वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी वी बी डैश स्क्वायर। And here v is the initial velocity and v dash is the final velocity. Okay, and here is the some quantities written here. These are 7 पावर 18 को हम लोग एक्सा बोलते हैं, जिसको ई से डिनोट करते हैं। 7 पावर 15 को हम लोग पेटा बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। 7 पावर 12 को टेरा बोलते हैं, जिसको टी से डिनोट करते हैं। 7 पावर 9 को गीगा बोलते हैं, जिसको जी से डिनोट करते हैं। 7 पावर 6 को मेगा बोलते हैं, जिसको एम से डिनोट करते हैं। एंड 7 पावर 3 को किलो बोलते हैं, जिसे के से डिनोट करते हैं। 7.2 को हेक्टो बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। 7.1 को डेका बोलते हैं, डी ए से डिनोट करते हैं। 7.-1 को डेसी से डिनोट करते हैं। एंड 7.-2 को सेंटी बोलते हैं एंड सी से डिनोट करते हैं। -3 ऑब्वियसली वी नो इट वेल, मिली बोलते हैं। -6 माइक्रो एंड म्यू से डिनोट करते हैं। 7.-9 को नैनो एन से डिनोट करते हैं। एंड 7.-12 तो पिको करते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। -15 फेमटो एफ से डिनोट करते हैं। -18 एटो ए से डिनोट करते हैं। एंड हियर इज द सम अदर वैल्यूज। लेंथ को हम लोग मीटर में लिखते हैं, इसका एम होता है सिंबल, एम मास को किलोग्राम में, केजी इसका सिंबल होता है, टाइम को सेकंड में करते हैं। एंड इसका सिंबल एस होता है एंड करंट को एम्पियर में, और इसका ए से होता है। ओके, एंड हियर इज आवर टेबल of some derived units and area क्षेत्रफल का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है और इसको एम स्क्वायर से डिनोट करते हैं।
वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब होता है। एंड स्पीड या वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से रहता है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एंड डेंसिटी या मास डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में लिखते हैं। एंड इसको करंट डेंसिटी को एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल पर क्यूबिक मीटर में लिखते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम में लिखते हैं। ओके, एंड हियर आर द सम स्पेशल क्वांटिटीज ऑफ रेडियोलॉजिक साइंसेज एंड देयर एसोसिएटेड स्पेशल यूनिट्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोजर को हम लोग रोंजन में मेजर करते हैं एंड आर से लिखते हैं। इसका अदर नेम एयर कर्मा भी है। एंड इसको ग्रे से GY से हम लोग डिनोट करते हैं। एब्जॉर्ब डोज को रेडियन भी बोलते हैं एंड इसका सिंबल भी रेडियन होता है। इसको ग्रे का नेम से लिखते हैं एंड ग्रेवम इसका सिंबल होता है। एंड इफेक्टिव डोज को रैम से डिनोट करते हैं, रैम इसका सिंबल भी होता है। इसको सीवर्ड में मेज करते हैं एंड सीवर्ड SV से लिखते हैं हम। रेडियो एक्टिविटी को क्यूरी से लिखते हैं CI एंड इसको बैकुरल में नाम से भी लिखते हैं एंड इसका BQ होता है। एंड इफ वी मल्टीप्लाई R, अगर R को हम लोग 0.01 से अब तो क्या ऑब्टेन होगा, तो हमें ऑब्टेन होगा ग्रेवन यानी कि एयर कर्मा ऑब्टेन होगा। एंड अगर हम लोग रेड ग्रे को मल्टीप्लाई 0.01 से तो क्या ऑब्टेन होगा, ग्रे टी को। रैम को अगर हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइवर्ट। एंड क्यूरी को 3.73 इंटू 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैक्यूरल प्राप्त होगा। एंड रेडियन को अगर हम लोग 2.583 इंटू 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर केजी हमें मिलेगा। सो थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब and keep supporting, and for such informative videos like, share and subscribe and comment another topics. Bye bye, see you soon.